Okay, fine. So last time we discussed a number of aspects about essay. When I was taking the lecture, and we discussed very important aspect of how to write a proper paragraph. As you all know, that writing task is the most crucial part of your IRTS, and we have been discussing writing task over the last couple of lectures. In the first lecture, I discussed how to write an effective introduction. And in the previous lecture that I took on Friday, we discussed how to write an effective paragraph. And today we are going to write how to write an effective conclusion. And finally, if time permits, we'll also discuss the entire essay as a whole. And this format will be followed for the rest of the essays. So I'm reading in front of you. The conclusion is, as you all know, is the last paragraph of the entire essay. uh, the conclusion is the easiest paragraph to write. I mean, if you know it properly, it is probably one of the most easiest paragraph to write, but you should know it how to write. And more importantly, because in many ways you are just using ideas you have already mentioned in your introduction and main body paragraphs. However, this is the last thing the examiner will read, and it is therefore crucial that you finish strongly. Now, I have seen number of times that people write a very good introduction, people write very good paragraphs, but then when it comes to conclusion, they lag behind. There is a feeling of laxity. There's a feeling of complacency. For example, conclusion है, last paragraph है, तो सुकून से शांति से लिखना है, but they don't give proper attention to conclusions. So I would strongly recommend that. वो क्या होता है कि लास्ट में आपको 7 बैंड्स देने की वो सोचता है दिमाग में, but because the conclusion is not up to the mark, or you don't know how to write an effective conclusion, you end up in getting 0.5 बैंड्स lesser. So ये नहीं करना है आपको. कंक्लूजन में आपने दो ही, बहुत छोटा सा है लेकिन छोटी सी चीजें याद रखनी है. Now, this is the last thing the examiner will read, and it is therefore crucial that you finish strongly. You will probably not have much time remaining when you're writing your conclusions. So it is very important that you practice them and learn how to write them quickly. कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा. I think we discussed before as well that when you write writing task 1 and writing task 2 in the real examination, make sure that you write writing task 2 first. मैंने आपको कारण बताया था कि अगर टाइम परमिट नहीं हुआ तो आपको ऐसा नहीं, you won't be in a situation wherein you don't have time to complete the entire essay. So you need to make sure that writing task 2 पहले लिखा जाए. उसका वेटेज 6 बैंड है, so उसको पहले लिखना है और writing task 1 को बाद में लिखना है. Now let us try to quickly go through the tips of writing conclusion. The first and the foremost thing is that never write any new ideas in your conclusion. Now this is the most important thing that you need to understand. किसी भी हिसाब से आपको कंक्लूजन में नया पॉइंट नहीं देना है. आपने जो पहले पैराग्राफ में, प्रीवियस पैराग्राफ में डिस्कस किया है, आपने वही लिखना है. यू नीड टू स्टिक. आपको कभी कभार ऐसा होता है, बिकॉज व्हेन यू राइट एन एसे, आई आल्सो राइट एन एसे, आई हैव आल्सो गिवन द एग्जामिनेशन, मैंने भी दी है. और कभी कभी कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं तो याद आता है कि यार वो आइडिया इससे बेहतर था, वो रह गया हमारा. एंड यू ट्राई टू गिव दैट आइडिया इन द कंक्लूजन, और देन इट विल बी अ हॉरिफिक कंक्लूजन. सो भले ही कुछ भी हो जाए, आप नया आइडिया कंक्लूजन में नहीं डालोगे. आपने जो आइडियाज देने थे वो बॉडी पैराग्राफ्स में दे दिए. यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनी न्यू आइडियाज इन कंक्लूजन. अ कंक्लूजन शुड सिंपली रीस्टेट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रीस्टेट. रीस्टेट का मतलब होता है आप उसी चीज को दोहराओगे अलग भाषा में. आधा ग्लास भरा हुआ है आपने अगर इंट्रोडक्शन में लिखा है, यू आर गोइंग टू राइट आधा ग्लास खाली है in conclusion. The meaning remains the same, the sentence changes. So you are not going to write any new idea in the conclusion. New ideas should be in the main body and not in the conclusion. So very very important that you don't write any new idea in conclusion. Make sure you answer the question in the conclusion. जैसे कि for example काफी essays है, to what extent do you agree or disagree. मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में आप 3 लाइंस लिखोगे. The first one is going to be the paraphrasing of the essay. Second जो लाइन होती है is the thesis statement, जहाँ पे आप ये कहते हो कि आप उसको एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या तो फिर आप अपना मंतव्य बताते हो. यू आर गिविंग योर ओन ओपिनियन. सो आपने वही चीज कंक्लूजन में डालनी है. यू कैन नॉट लीव कंक्लूजन, यू कैन नॉट राइट कंक्लूजन इन जनरल सेंस. मतलब कि अगर एग्जामिनर आपका कंक्लूजन पढ़ता है, फ्रॉम द कंक्लूजन यू हैव रिटन, ही शुड बी एबल टू नो व्हाट योर डिसीजन इज. आप एग्री करते हो जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखा है, उसी चीज को आपको रीस्टेट करना है इन कंक्लूजन, बट इन डिफरेंट वर्ड्स.
The conclusion should state what you think about the question and make it clear how you feel about the issue. अब कैसे लिखना है? I'm going to explain you. Let us go to the new slide. Okay. और तीसरा जो है मैंने पहले बताया, the first thing is never write any new ideas in your conclusion. दूसरा, make sure you answer the question in the conclusion. तीसरा, vary your language. You don't need to copy what you written in the, मैंने बताया था आपको rephrase करना है, you need to rephrase it. But at the same time rephrase का मतलब ये नहीं होता कि आपने कॉपी करना है, आपने अपनी लैंग्वेज को वेरी करना है. Just because you are restating the ideas you have in the rest of your essay does not mean you should use the same language. Instead, you should show the examiner you have wide vocabulary by paraphrasing. आपने अलग तरीके से लिखना है. You should try to change the words. You may probably go for writing a different synonym. Phrase का change कर सकते हो. And more importantly, आपको make sure that you don't copy from the introduction. Fourth important point is don't try to include everything. अब देखिए conclusion 2 लाइन का होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन. I don't permit you people to write more than 2 lines in conclusion or else it will be a hodgepodge. पूरा hodgepodge हो जाएगा, मजा नहीं आएगा. So you need to make sure that you don't, अब आपको करने की जरूरत भी नहीं है. So don't try to include everything. You are not required to go into detail and you have, because आपने सारी जो चीज डिटेल में समझानी है वो बॉडी पैराग्राफ्स में समझा दी है. So there is no point writing everything in conclusion. So I repeat, हमने पहले क्या किया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज के पहला आपने नए आइडियाज नहीं डालने हैं. मेक श्योर यू आंसर द क्वेश्चन इन द कंक्लूजन. थर्ड, वेरी योर लैंग्वेज. और तीसरा, सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन लिखना तो है. ऑलवेज राइट वन. I have had discussions with number of British Council and IDP people, और उन्होंने ऐसा देखा है विद देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने ऐसा कहा है कि 100 में से तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनको टाइम परमिट नहीं मिलता या तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता कि वो कंक्लूजन लिख पाए. अब होता क्या है, दैट यू राइट ए वंडरफुल ऐसे, यू हैव रिटन वंडरफुल इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा आपने, फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट people don't write conclusion because the time is not permitting them to write one. मेरे पास काफी ऐसे उदाहरण है जहाँ पे मैंने देखा है, बच्चों को पूछता हूँ एग्जाम में 8-8 बैंड आते हैं हमारी मॉक टेस्ट में, और मुझे आके बताते हैं कि सर वी डिड नॉट गेट टाइम टू राइट कंक्लूजन. ये बहुत बड़ी दिस इज अ बिग फेलियर ऑन योर पार्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि कंक्लूजन लिखे, उसको दिखना चाहिए, वरना क्या होगा उसका आपके तरफ इट विल बी अ प्रेजुडाइज दैट दिस गाय हैज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द एंटायर ऐसे. किसी भी हिसाब से बॉडी पैराग्राफ अगर लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा सा बॉडी पैराग्राफ को थोड़ा सा जल्दी से खत्म करके ट्राई टू मेक श्योर दैट यू राइट कंक्लूजन प्रॉपर्ली. तो उसको लिखना दिखना चाहिए कि कंक्लूजन लिखा आपने. कंक्लूजन लास्ट में जो कंक्लूजन जो फ्रेजेस कौन से, आई डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स, but the person, the examiner should realize that this guy has written the complete conclusion. वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है. So I repeat, 5 चीजें, छोटी सी चीजें हैं बहुत, लेकिन बहुत मायने करती है. The most important thing is that you should try to, first and the foremost thing, पहला, conclusion नए आइडियाज नहीं डालने हैं. दूसरा, make sure you answer the question in the conclusion. थर्ड, लैंग्वेज वेरी कीजिए, डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है इंट्रोडक्शन में, सारी चीजों को इंक्लूड मत कीजिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कंक्लूजन तो लिखना ही है. और छठा जो पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंसेस. डोंट ट्राई टू राइट 3-4 सेंटेंसेस इन कंक्लूजन. मैंने आपको बताया था कंक्लूजन शुड बी प्रॉब्ली ऑफ 35 to 45 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट. सो यू शुड नॉट बी राइटिंग काफी. आपका अगर लेवल बढ़ेगा, व्हेन आई राइट द एसे आई ओनली राइट 1 लाइन, मतलब मेरे लिए 1 लाइन पर्याप्त है. आई कैन राइट अ वेरी गुड इफेक्टिव कंक्लूजन इन 1 लाइन. But if that is not possible for you, I would recommend that you should write only, not more than 2 lines in conclusion. Is it getting clear? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the most important part, सर conclusion की शुरुआत कैसे की जाए? There are lots of phrases, अगर आप if you search out connectives on Google, you'll find out infinite books and materials and websites that will help you out in writing a good conclusion, a starting phrase, to write a good conclusion. लेकिन ये सारे phrases काम के नहीं हैं.
नाउ लेट मी एक्सप्लेन कौन से फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है व्हेन यू राइट अ इफेक्टिव कंक्लूजन। जैसे कि द फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद अ लिंकिंग फ्रेज। आपको पता होगा, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द कंक्लूजन देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्रेज। दैट फ्रेज वर्क्स एज अ साइन पोस्ट टू द एग्जामिनर कि ये बंदा जो है ये कंक्लूजन लिख रहा है। इट कैन नॉट बी अ नॉर्मल इट कैन नॉट बी रिटन इन द वे यू आर राइटिंग द पैराग्राफ्स, और एल्स कंक्लूजन लिखने के बावजूद एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि ये बंदे को कंक्लूजन लिखने का टाइम नहीं मिला। He might mistake your concluding paragraph as a body paragraph, and he will feel that you have not written a conclusion, thereby you will lose marks on that. So very important that you utilize proper connectives when you are writing a conclusion. Now what are the words that you can write? Now I have seen number of people trying different type of phrases. जैसे कि पहला है finally. People write word like finally, in a nutshell. People also write words like in general. People write words like in conclusion, and finally to conclude. बहुत सारे words हैं. I am discussing the 5 most common words being utilized by people. अब ये पांचों पांच वर्ड्स लगता है लेकिन ये नहीं लिखने हैं। ये पांचों पार्ट्स आप कंक्लूजन में ये मुट्ठी बांध के बैठ जाओ कि कंक्लूजन में मैं जो आपको 2 वर्ड्स बोलूं उसी वर्ड से आपको कंक्लूजन लिखने का स्टार्ट करना है। द फर्स्ट वर्ड, लेट अस ट्राई टू डिस्कस द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज फाइनली। जैसे कि फाइनली है। नाउ लेट मी गेस कि भाई फाइनली कैसे नहीं। नाउ फाइनली इसलिए नहीं लिखना है बिकॉज यहाँ पे लिखा है फाइनली इजंट रियली सुटेबल बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट यू आर मेकिंग ए फाइनल पॉइंट एंड देयरफॉर अ न्यू आइडिया। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं किस चीज के बारे में बोलता हूँ तो मैं कैसे बोलूंगा? फर्स्टली ये कारण, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि पहला कारण ये है, फर्स्टली इज दिस, सेकंडली इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस। इसका मतलब ये हुआ, व्हाट डज इट मीन? that when I write finally in the conclusion, that means I am presenting a new idea. लेकिन आपको पता है कि conclusion में I am not making a new idea. So finally is not the right word to include in the conclusion because it's the word which is basically should be utilized in the main body paragraph and not in the conclusion. So भले ही काफी books में आपने देखा होगा finally इस्तेमाल करते हैं लोग, but you should not include finally in your conclusion. फिर I have seen number of people utilizing a word like in a nutshell. लेकिन in a nutshell is basically too informal. Informal मतलब it can be utilized in speaking. मैंने आपको पहले भी समझाया था. There is a difference between IELTS writing and IELTS speaking. There are a number of phrases that we can very much utilize in speaking, but not so in writing. जैसे कि इसमें से एक वर्ड है in a nutshell, but this is a very informal word, so you can very well utilize in speaking when you are speaking about clue card, when you are talking about or you are giving your opinion and then you want to conclude it, then you can very well utilize a word like in a nutshell, a phrase rather, like in a nutshell. But in IELTS you should not utilize in a nutshell because it is a very informal phrase, or IELTS writing is all about formal writing. Is it getting clear? So you're not going to utilize word like finally nahi hoga. You're not going to utilize word like ye nahi hoga. You're not going to utilize word like in a nutshell. In general, अब लोग काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि we utilize the word in general. अब in general नहीं यूज करना है because it tells the reader you are going to talk generally about the topic. अब ये जनरली वाला टॉपिक का जो सेंटेंस है, मैं तो उसको आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट, बट अगर काफी लोग इस्तेमाल करते हैं तो इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर एसे when you're talking about a general thing. For example, essay is about environment, that you may write then you may write a general statement about environment in the first line. लेकिन in general is not the right word that you should utilize in your conclusion. Conclusion शुरुआत करने पे आपने in general नहीं लिखना है. Are you getting the point? Because it tells the reader you are going to talk generally about the topic. This is not what we are going to do in our conclusion and we should therefore not use it. Is it getting clear? तो कहने का तात्पर्य ये है कि these 3 words, the first one is finally, in a nutshell, in general, ये आप कंक्लूजन लिखने के शुरुआत में इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। तो सर आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स रह जाते हैं और वही आपको इस्तेमाल करना। देखिए आपने यू आर नॉट गोइंग टू राइट 10 एसेज इन योर IELTS, तो सर मैं फिर 5 एसेज लिखूंगा। आपने 5 ऐसे कहाँ लिखने हैं? यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू राइट 1 ऐसे। तो एक ही ऐसे अगर लिखना है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पर्याप्त वर्ड्स है दैट यू शुड बी यूटिलाइजिंग। द फर्स्ट वन इज इन कंक्लूजन एंड सेकंड वन इज टू कंक्लूड। यही 2 वर्ड्स है जिससे आपका कंक्लूजन शुरुआत होनी चाहिए। दिस आर द ओनली 2 वर्ड्स एंड दिस 2 वर्ड्स शुड बी फॉलोड बाय कॉमा।
Are you getting the point? Because ये आपके, this is basically a linking phrase, so you should always utilize a comma after it. So I repeat, in conclusion and to conclude are the two linking phrases you should use to start your conclusion. Understood? Okay. They tell the reader exactly what the paragraph is about, and they are formal, और वो formal भी है. So you are not going to utilize a phrase like in general, finally, in a nutshell. आप सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड का इस्तेमाल करोगे, in conclusion and second one is to conclude. अब कंक्लूजन में दो एलिमेंट होने चाहिए. फर्स्ट, देयर आर टू एलिमेंट्स टू अ गुड कंक्लूजन. एक तो आपने अपने मेन पॉइंट को रीस्टेट करने हैं, वापस कहने हैं, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपकी वोकैबुलरी चेंज करके पैराफ्रेज करके लिखनी है. वी हैव ऑलरेडी टेकन लेक्चर बिफोर हाउ टू पैराफ्रेज इट इफेक्टिवली. तो आप वो सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो. जिनका नहीं हुआ है लेक्चर, वो बाद में व्हेनेवर वी आर टेकिंग इट अगेन, आई विल टेक इट. Now, luckily, we have already stated our main points in the introduction. So, all we have to do is look back at the conclusion and paraphrase it. हमें introduction देखिए, जब when you are utilizing conclusion, you should always have introduction in your mind. Body perhaps do not play a very important role in you writing a good conclusion. So, remember one thing: whenever you are writing a conclusion, it should be in coherence with what you have written in introduction, but in different language. Clear? So, let us try to understand it. Okay, now let me explain you by giving you a sample essay. मैं आपको छोटा सा एक sample essay देता हूँ. Now ऐसे ये कहता है, I hope it is readable. ऐसे ये कहता है कि practical skills such as money management should be taught in high school. Do you agree or disagree? Give opinion and real life examples. I'll repeat. Practical skills such as money management should be taught in high school. नाउ काफी कबार हम लोग बच्चों को ऐसा कहते हैं कि भाई तेरे को पैसे का क्या लेना देना, यू डोंट वरी अबाउट मनी. काफी माँ बाप ऐसा बोलते हैं, लेकिन काफी माँ बाप ऐसा बोलते हैं भाई इसको हिसाब, छोटा सा हिसाब भी उसको सिखाते हैं. सो व्हेन यू गो टू अ सुपर मार्केट एंड देन व्हेन यू आर परचेसिंग, बच्चों को ही बोलेगे भाई तू हिसाब सीख. सो उससे क्या होता है कि कि बच्चों को भी पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंस, पैसों का कैसा इस्तेमाल करना है, व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स टू बी टेकन. तो टॉपिक ये कहता है, और काफी लोग उसको डिसएग्री करते हैं कि छोटी उम्र में पैसों का क्या काम. हर एक का अलग मंतव्य होता है, लेकिन टॉपिक ये कहता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज मनी मैनेजमेंट शुड बी टॉट इन हाई स्कूल. हाई स्कूल से ही ये मनी मैनेजमेंट की स्किल सिखा देनी चाहिए. आपका क्या कहना है? नो, अगर यही ऐसे है तो उसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, एंड देन विल लुक एट द कंक्लूजन पार्ट. बिल्कुल शांति से करते हैं. आई ऑलरेडी टॉट यू बिफोर दैट इंट्रोडक्शन शुड बी ऑफ 3 लाइन्स. So first line is going to be the paraphrasing of the essay. The second line is going to talk about the thesis statement, जहाँ पे मैं अपना अभिप्राय देता हूँ. And last but not the least, the third line of the essay, I mean introduction, is going to be the outline of the essay, what I am going to do in the essay. So I'll read the introduction in front of you. It is argued that students should be taught real life skills like how to look after money. अगर आप इसको देखेंगे तो what we have done is just paraphrase this statement. So it is argued because see, whenever you are writing an essay on agree disagree, it is always good to start with it is argued that, क्योंकि आपको to what extent do you agree or disagree का मतलब ये हुआ कि काफी लोग उसको एग्री करेंगे, काफी लोग उसको एग्री नहीं करेंगे. That means ये अपने अपने विचार पे है. तो ऐसे केस में it is better to start the essay with it is argued. So it is argued that के बाद, इसके बाद आपने ये जो किया is what you have done is the paraphrasing of the essay. Practical skills such as money management should be taught in high school. So हमने उसका paraphrasing किया. देखो, students should be taught real life skills like how to look after money. मतलब वही हुआ ना, money management मतलब how to look after money. So the first line is the paraphrasing of the essay. Now हमें thesis statement देना है second line में. This essay agrees that they should be part of the curriculum. मतलब काफी लोग ऐसा मानते होंगे कि it should not be taught from childhood, I mean from high school, but there are people, मैं ये मानता हूँ, मतलब ये ऐसे ये कहता है कि this essay agrees that they should be part of the curriculum. ये curriculum का हिस्सा होना जरूरी है.
मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन सिखाया था तब कहा था कि यू कैन राइट आई एग्री दैट दिस शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, मतलब ये दिस ऐसे एग्रीज के बदले यू कैन ऑल्सो राइट आई एग्री, वो आपके ऊपर है. दिस ऐसे एग्रीज लुक्स मोर फॉर्मल देन आई. हाउएवर, it is also absolutely fine if you write I instead of this essay. So I repeat, the first line is about paraphrasing of the essay. The second line is the thesis statement, because we need to give our opinion that whether we agree or disagree with this statement. ये जो statement है उससे मैं agree करता हूँ कि नहीं agree करता. In this case मैंने इसको agree किया है. This essay agrees that they should be part of the curriculum. And last but not the least is the outline कि मैं ऐसे में क्या लिखने वाला हूँ. तो ऐसे में मैंने लिखा है, this essay will first discuss how everyday competencies मतलब जो skills होती है, ये ऐसे पहले ये डिस्कस करेगा कि हर रोज की जो कॉम्पिटेंसीज जो हम लोग सिखाएंगे बच्चों को बचपन से, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा लेटर इन लाइफ, मतलब लाइफ के पिछले पहलू में, मतलब आगे के पहलू में, सॉरी, मतलब इन द फ्यूचर. एंड दैट देन talk about the dangers of not being taught how to manage money at an early age. Now मैं वापस इसको split करूंगा. This essay will first discuss how everyday competencies benefit people later in life. पहले ये ऐसे डिस्कस करेगा कि ये जो मनी मैनेजमेंट की स्किल्स है वो हमें बाद में, मतलब हम जब बड़े होंगे, वो कैसे इससे कैसे फायदा होगा. एंड ये ऐसे ये भी कहेगा कि अगर इसको अभी से न सिखाया गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होने की संभावना है. आई रिपीट, दिस essay will first discuss how everyday competencies benefit people later in life, and then talk about dangers of not being taught how to manage money at an early age. और ये ऐसे अगर इस चीज को बचपन में नहीं सिखाया गया तो उससे आगे जाके कौन से डेंजर्स हमें फेस करने पड़ेंगे उसके बारे में भी जिक्र करेगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द कंक्लूजन राइट नाउ, लेकिन मैं क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था पैराग्राफ में, तो ये आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रीडर मतलब एग्जामिनर को ये बताता है कि आप क्या डिस्कस करने वाला है. तो अगर कोई होशियार आदमी है तो उसको देख के, एग्जामिनर देख के पता चल जाएगा कि जो दूसरा पैराग्राफ है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, लेकिन दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें शायद ये चीज होगी, उसमें ये होगा, डिस्कस हाउ एवरीडे कॉम्पिटेंसीज बेनिफिट पीपल लेटर इन लाइफ. ये दूसरा पैराग्राफ होगा, मतलब बॉडी पैराग्राफ वैसे दूसरा पैराग्राफ, लेकिन बॉडी पैराग्राफ 1, और दूसरा एंड देन टॉक, मतलब ये तीसरा पैराग्राफ हो गया, अबाउट द डेंजर्स ऑफ नॉट बीइंग टॉट हाउ टू मैनेज मनी एट एन अर्ली एज. ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ, मतलब यू आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन योर थर्ड पैराग्राफ. I am not going to discuss right now about the paragraphs, but I am just explaining you कि introduction कैसे लिखा है. It is very very important कि introduction कैसे लिखा है. So I repeat, the first line is going to be, it is argued that students should be taught real life skills like how to look after money. ये हमने क्या किया? What we did is paraphrasing the essay. This essay agrees that they should be part of the curriculum. This is basically the thesis statement. मैं इसको एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं. This is becomes my thesis statement. And finally the outline का मतलब what I am going to do or what I am going to explain in the body paragraphs. तो इसमें लिखा है body paragraphs, only in body paragraphs, because I told you before that in conclusion we are not going to give new ideas. We are only going to restate what we have written in introduction. Got? So this essay will first discuss how everyday competencies benefit people later in life. And दूसरी बात, यहाँ से दूसरा आता है, it will also talk about dangers मतलब the fatalities, कठिनाइयाँ कौन सी होगी, that अगर ये चीज को बचपन से नहीं सिखाया गया तो बच्चों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. Got? So this is entire introduction. अब यही इंट्रोडक्शन को what I am going to do is I'm going to do it this way. I have completed an effective introduction. ये तो हो गया. हमने क्या किया? पहले एक तो पैराफ्रेजिंग किया, ये जो मैंने आपको सिखाया वो.
दूसरा हमने अपना अभिप्राय भी दिया, एंड तीसरा मैंने आउटलाइन दिया. सो दिस इज, मैंने इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा, बट यहाँ से काम नहीं खत्म होता. वी ऑल्सो नीड टू राइट एन इफेक्टिव कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में हमने देख, लेट अस ट्राई टू रीड द कंक्लूजन. कौन से दो, अब मैंने आपको पहले बताया था कि देयर आर ओनली टू phrases that you should write when you start writing in conclusion. First is in conclusion और दूसरा जो है to conclude. Understood? These are the only two phrases. Don't try to experiment too much. ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. मैं जो बोलता हूँ वही करना है आपको. किसी ने ऐसे में ये लिखा, किसी ने ऐसे में वो लिखा, आप सब कुछ भूल जाओ. मैं जो बोलूँ वही सत्य. सो इन कंक्लूजन या तो फिर टू कंक्लूड. बाद में हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ये कॉमा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये टी जो है, दिस का टू टी है, वो कैपिटल में स्टार्ट करते हैं. अनलेस एंड अनटिल इट इज अ प्रॉपर नाउन. अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू कैन नॉट डू इट दिस वे. तो आपको लोअर केस में ही स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे कि इन कंक्लूजन इंडिया लिखते हो आप, इंडिया इज गोइंग टू प्रॉस्पर इन 2021, तो आप उसको कैपिटल में लिखोगे तो चलेगा. बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन है, तो आप उसको लोअर केस में करोगे. यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन द लोअर केस. सो हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट? कैसे करोगे इसको? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, इन कंक्लूजन, this essay supports the idea that teenagers ought to be taught functional subjects in their studies. Okay, and this will definitely help them in their future, and not teaching them will lead to serious consequences. Now, very important कि अगर काफी लोगों को इसको समझ में आया होगा या काफी लोगों को नहीं आया होगा, what we have done is, हमने ये दो लाइन का पैराफ्रेजिंग कर दिया. देखिए यहां से ये जो पूरा जो इंट्रोडक्शन है आपका, दिस एंटायर इंट्रोडक्शन, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पैराफ्रेज्ड दिस इंट्रोडक्शन. देखिए आई विल एक्सप्लेन. इन कंक्लूजन से स्टार्ट किया. नाउ हमने क्या किया था, व्हाट वी हैव डन इज, हमने एग्री किया था. तो एग्री के बदले देखिए, वी कैन नॉट, हमने यहाँ पे एग्री शब्द का इस्तेमाल किया था. व्हाट वी हैव डन इज वी चेंज दैट वर्ड टू सपोर्ट्स. So instead of agree, what I have done is I have written support. So I have changed that word. This essay supports the idea that teenagers ought to. Ought to का मतलब it's basically a wonderful paraphrasing of should be. देखिए, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि ये in paraphrasing second sentence I am saying that I agree with this कि हाँ बच्चों को बचपन से सिखाया जाए. So what I am doing is, in conclusion, this essay supports the idea that teenagers ought to be taught functional subjects in their studies. अब फंक्शनल सब्जेक्ट्स के बदले हमने क्या किया? फॉर एग्जांपल फंक्शनल सब्जेक्ट्स मतलब ये रहा, रियल लाइफ स्किल्स. तो इसके बदले हमने इस्तेमाल किया फंक्शनल सब्जेक्ट्स. सो व्हाट आई हैव डन इज, देखिए काफी पैराफ्रेजिंग किया. एग्रीज का हमने कर दिया सपोर्ट, और टॉट ऑट टू का हमने कर दिया, हाँ ऑट टू किया था हमने शुड बी का, एंड देन फंक्शनल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ स्किल्स. तो ये हो गया आपका. एंड लास्ट, दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम इन देयर फ्यूचर. अब देखिए हमने ये लाइन का पैराफ्रेजिंग किया है. देखिए, नाउ दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम इन देयर फ्यूचर. तो ये क्या किया हमने? दिस विल फर्स्ट डिस्कस हाउ एवरीडे कॉम्पिटेंसीज बेनिफिट पीपल लेटर इन लाइफ. तो लेटर इन लाइफ के बदले हमने क्या कर दिया? व्हाट वी हैव डन इज दैट इन द फ्यूचर मतलब लेटर इन लाइफ, एंड नॉट टीचिंग देम विल लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. तो हमने वही तो आउटलाइन में लिखा था कि अगर उसको पढ़ाया नहीं गया तो वो लोग को काफी खतरा हो सकता है. डेंजर्स मतलब इससे काफी नुकसान हो सकता है उनको. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट पैराफ्रेज द इंट्रोडक्शन बट इन डिफरेंट लैंग्वेज. आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट पैराफ्रेज द इंट्रोडक्शन, उसी चीज को दोहराया है मैंने, बट आई हैव यूटिलाइज दैट इन डिफरेंट लैंग्वेज. मैंने सिर्फ उसको दूसरे लैंग्वेज में इस्तेमाल कर दिया है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू माय डियर स्टूडेंट्स. आपने इंट्रोडक्शन में पहली इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड नॉट ट्राई टू राइट ए न्यू आइडिया इन कंक्लूजन. इन कंक्लूजन से शुरुआत कीजिए. आपने जो लिखा है इंट्रोडक्शन में उसको आप पैराफ्रेजिंग करते हो इन डिफरेंट लैंग्वेज. अब देखिए हमने पैराफ्रेजिंग क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था. व्हाट वी डिड इज पैराफ्रेजिंग. देखिए, सो ऑल आई हैव डन is restate my opinion and included my main supporting points. मैंने supporting points को किया है. However, I have not simply copied the words. मैंने words को copy नहीं किया है. I have used synonyms and paraphrasing to vary my language. So what I have done is only rewritten, restate. देखिए conclusion का start ही ऐसा होता है. It is basically restating. मैंने restate किया है introduction को, लेकिन मैंने अभी बताया था which are the words I have paraphrased. The first one is this essay supports, उसके बदले मैंने इस्तेमाल किया this essay agrees,
शुड के बदले मैंने लिया ought to। देखिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई सुलझा हुआ इंग्लिश में काफी पढ़ा हुआ आदमी है, उसकी वोकैबुलरी अलग लेवल पे होगी, कोई बेसिक लेवल का है। लेकिन अगर आपने पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल भी किया है, देन ऑल्सो यू आर बाउंड टू गेट 7.5 एंड्स। फिर स्टूडेंट्स जो है उसके बदले मैंने टीनेजर्स का इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स के बदले हमने टीनेजर्स किया है। फंक्शनल सब्जेक्ट के बदले हमने किया है रियल लाइफ स्किल्स। लेटर इन लाइफ के बदले हमने किया इन द फ्यूचर, और डेंजर्स के बदले हमने इस्तेमाल किया सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सो आई what I did eventually is I rewrote the entire introduction but in different language. This is what I am supposed to do in each and every essay. So I repeat, ये आपका introduction है, ये आपका essay है, ये आपका introduction है, this is the conclusion, and this is how the entire essay, the conclusion should be written. Any questions, any doubts students before we go ahead? कोई questions है, कोई doubts हो तो आप मुझे बता सकते हैं, because I am now going to stop this. बोलिए, कोई क्वेरीज है?